بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 2 عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس طرح حضرت اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے چھوٹے بھائی تھے۔ بہرحال ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ان کا گزر مصر سے ہوا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں روک لیا اور انہیں اپنا قیدی بنا لیا۔ مصر کا بادشاہ ایک ظالم اور جابر انسان تھا۔ اس کا حکم تھا کہ جب بھی جو بھی خوبصورت عورت مصر آئے تو اسے اس کے شوہر سے چھین کر محل میں بادشاہ تک پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی حسین و جمیل بیوی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ مصر پہنچے تو بادشاہ کے سپاہیوں نے دونوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پر پابند کر دیا اور ان کی زوجہ حضرت بی بی سارہ کو وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے جب حضرت بی بی سارہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے جب بی بی کو چھونا چاہا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی حرکت نہ کر سکا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے دعا کی تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا، مگر اس پر پھر شیطان غالب ہوا اور بادشاہ نے پھر بی بی سارہ کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو، میں تمہیں تنگ نہ کروں گا۔ حضرت بی بی سارہ نے پھر دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے تیسری بار بھی ایسا ہی کیا اور تیسری بار بھی حضرت بی بی سارہ کی دعا سے ٹھیک ہوا۔ بادشاہ نے اس بار سچے دل سے توبہ کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ کے سپرد اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کی اور خواہش ظاہر کی کہ اگر اس کی بیٹی کو نبی خدا اپنی نکاح میں لے لے۔ پھر بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ بی بی ہاجرہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حضرت بی بی ہاجرہ خبطیہ مصریہ کو اپنے نکاح میں لے لیا اور پھر بادشاہ سے رخصت لے کر مصر سے چلے۔ اللہ پاک کی قدرت سے حضرت بی بی سارہ سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کی گود ہری ہو گئی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کے بطن سے ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے پاک باز اولاد عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ ان کے 13 سالوں بعد حضرت بی بی سارہ کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ حضرت بی بی سارہ نے پہلے خواہش ظاہر کی کہ ان کے شوہر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ اب جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بی بی سارہ کو اولاد سے محرومی کا احساس ہوا۔ ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، وہ ہر وقت غمگین رہتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنی زوجہ یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
सहरा में कहीं दूर किसी वीरान जगह पर ले जाकर छोड़ आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करते हुए सफर की तैयारी का इरादा किया। दूसरी तरफ बीबी सारा को अपने जज्बात पर काबू पाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने अपने शौहर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसी ऐसी जगह पर छोड़ आए जहां मैं उन्हें ना देख सकूं। चुनाचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बार भी बीबी सारा की ख्वाहिश का एहतराम किया। बहरहाल कई रोज के तवील सफर के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फारान के पहाड़ों में आकर रुके। फारान के पहाड़ वो हैं जो कि मक्का शहर के इर्द गिर्द हैं। उन्होंने अपनी जोजा बीबी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बड़े रेगिस्तान में एक दरख्त के नीचे बिठा दिया। फिर बीबी हाजरा को खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा दिया और फिर वहां से जाने के लिए रवाना हुए। बीबी हाजरा ने उन्हें जाते देखा तो उनका रास्ता रोक लिया और उनसे सवाल किया कि आप हमें इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहाँ तो ना आबादी है और ना ही पानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल के जवाब में खामोश रहे तो बीबी ने कहा, क्या आप अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ। हजरत बीबी हाजरा ने कहा, तब मुझे कोई फिक्र नहीं और ना ही खौफ है। मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक हम दोनों माँ बेटे की हिफाजत फरमाएगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा और बेटे को अलविदा कहा और फरमाया, तुम दोनों का निगहबान मेरा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को एक वीरान मकाम पर छोड़कर जा रहे थे जहां आबादी थी ना ही पानी। दूर दूर तक सिर्फ वीरानी ही वीरानी थी। जब आप अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे से जुदा हुए तो बहुत गमगीन थे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर भी आप अलैहिस्सलाम का ईमान और इरादा कमजोर ना पड़ा। चलते चलते आप अलैहिस्सलाम घाटी पर पहुंचे जहां से वो लोग नजर नहीं आ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम रुके, अपना रुख उस तरफ किया जहां आजकल खाने काबा है और हाथ उठाकर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआ मांगी, ए परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहां खेती नहीं तेरे इज्जत वाले घर के पास ला बसाई है। ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें, सो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क़ दे ताकि तेरा शुक्र करें। अल्लाह पाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी से बेहद खुश हुए और उनके बीवी बच्चों को हर आफत से महफूज रखा, जबकि वादा भी फरमाया कि उनके आने वाली नस्लें खुशहाल होंगी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की औलाद में से हैं। बहरहाल दूसरी जानिब जब सूरज ने अपना जोर दिखाया तो पूरा रेगिस्तान आग के मानिंद जलने लगा। मासूम बच्चा प्यास से तड़प उठा। अपने लगते जिगर की ये हालत देखकर बीबी हाजरा बेचैन हो गई। बंजर पहाड़ियों सफा और मरवा के दरमियान बच्चे को लिए परेशान थी कि क्या करें। खजूरें और पानी भी जो साथ लाया गया था खत्म हो चुका था। आपसे बच्चे की प्यास ना देखी जा रही थी, फिर ये ख्याल करके कि बच्चा प्यास से दम ना तोड़ दे, बच्चे को तपती रेत पर लेटाया और खुद पानी की तलाश में दौड़ती हुई सफा की चोटी तक गई कि शायद दूसरी तरफ पानी मिल जाए या कोई मदद के लिए ही मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक ना आबादी नजर आई ना ही पानी। फिर सफा से वापस दौड़ती हुई बेटे के पास आई कि उसका हाल देखें। बेटे को प्यास से बिलबिला कर रोता देखा तो दूसरी तरफ की पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि शायद वहां पानी या आबादी नजर आ जाए, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ। इसी हालत में आप एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी।
और हर बार वो इस तरफ से बेतहाशा दौड़ पड़ती जहां उन्होंने अपने मासूम बच्चे को गरम रेत पर लेटाया हुआ था। आपने मुसलसल 2 पहाड़ियों कोहे सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाए और फिर मायूसी के आलम में बच्चे के पास लौटी। बच्चा प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ रहा था। प्यास की शिद्दत और सूरज की तेज गर्मी की वजह से बच्चे के गुलाब जैसे सुर्ख होंठ सफेद हो चुके थे। पानी की तलाश में नाकामी के बाद और भूख प्यास गर्मी की शिद्दत और भाग दौड़ की वजह से आप कमजोरी की हालत में बेटे के करीब ही गिर गई और ऐसे में अल्लाह पाक को पुकारा, या परवरदिगार मदद फरमा। फिर क्या था, अल्लाह मुश्किल कुशा की रहमत जोश में आई और देखते ही देखते जहां मासूम बच्चा एड़ियां रगड़ रहा था वहां से एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया, जो आज तक जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी व सारी रहेगा। और ये चश्मा आबे ज़मज़म के नाम से मशहूर है। बहरहाल हजरत बीबी हाजरा ने ये कैफियत देखी तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी सैर होकर पिया। फिर उन्होंने मिट्टी और पत्थर लाकर उस पानी के चारों तरफ लगाकर पानी को बंद किया ताकि वो फैलने ना पाए। और यूं दिन गुजरने लगे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की गोद में परवरिश पाने लगे। एक रोज इत्तफाक से बनु जरहम के सौदागरों का एक काफिला उधर से गुजरा। उनके साथ उनके मवेशी भी थे। ये काफिला कद्दाह की तरफ से आया और मक्का की नशीबी हिस्से में आया। उन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो बोले, ये परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है और हम जब भी यहाँ से गुजरे हमें पानी नजर नहीं आया। फिर काफिले के सरदार ने 2 आदमी भेजे कि हकीकत हाल मालूम हो, तो उन्हें पानी नजर आया। उन्होंने वापस जाकर सरदार को बताया। सरदार पानी की सिंध बढ़ा तो उन्होंने एक खातून को पानी के किनारे बैठा देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले जब यही काफिला कुछ अरसा बेशतर इस मकाम से गुजरा था तो यहाँ पर कोई चश्मा वगैरह नहीं था। कबीले के सरदार मीठे ठंडे पानी का चश्मा देखकर हजरत बीबी हाजरा के पास आया और कहने लगा, ए खातून, आप कौन हो और किस लिए यहाँ इस वीराने में छोटे से बच्चे के साथ तन्हा बैठी हो? हजरत बीबी हाजरा ने सरदार को मुख्तसर अपनी कहानी बताई। सरदार ने सारी बात सुनने के बाद कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग आपके पास ही अपने बाल बच्चों के लिए रहने की जगह बना लें। और कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, आप बाखुशी यहाँ रह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि ये चश्मा किसी की जागीर नहीं है। इस चश्मे पर कब्जा ना जमा लेना, क्योंकि इस सहरा में ये चश्मा अल्लाह पाक का दिया गया इनाम है और ये अल्लाह पाक ने सबके लिए दिया है। सरदार ने फौरन हामी भर ली, क्योंकि अरब में पानी कहीं कहीं ही मिलता है और जहां पानी मिलता लोग वहीं अपनी बस्तियां आबाद कर लेते थे। लिहाजा सरदार ने चश्मे के करीब बुझवार में मुस्तकिल क़यामगाह बना ली। तमाम काफिले वाले बेहद खुश थे। उन्होंने यहाँ पर अपने खेमे नस्ब किए और अपने मवेशी, ऊंट, बकरियां, भेड़ें वगैरह यहाँ की चरागाह में छोड़ दी। इस तरह कुछ ही दिनों में चश्मे के करीब खासी आबादी हो गई और इस तरह नबी खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी पूरी हुई, जो उन्होंने यहाँ से जाते हुए अपनी बीवी और बेटे के लिए मांगी थी कि लोग उनकी तरफ मतवज्जा हुए। उनकी बीवी और बेटा सलामती से रहे और उन्हें रिस्क की भी तंगी ना रही। काफी अरसा इसी तरह गुजर गया। आबादी में इजाफा होता चला गया और दूसरी तरफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए। बहरहाल एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें इशारा हुआ, ए इब्राहिम, अपनी सबसे अजीज तरीन हस्ती अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर।
मुसलसल 3 दिन तक आप अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब नजर आया तो आप अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये अल्लाह पाक का हुक्म है और उनके लिए इस हुक्म की तामील फर्ज है। तीसरे रोज ख्वाब देखने के बाद जब सुबह बेदार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने इस ख्वाब का जिक्र अपनी ज़ौजा अव्वल यानी बीबी सारा से किया, क्योंकि उस वक्त वही उनके करीब थी। इसके अलावा भी आप अलैहिस्सलाम हर मामले में बीबी सारा से मशवरा किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, सारा, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपने फर्जंद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं और मैं हुक्म खुदाबंदी को बजा लाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हजरत बीबी सारा ने कहा, अल्लाह पाक की यही रजा है तो फिर मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगी कि आप अल्लाह पाक की तरफ से लिए गए हर इम्तिहान में सरखुरू रहें। अब जबकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, उनके लिए यह बड़ा मुश्किल इम्तिहान था कि अपने प्यारे जवान साल बेटे को अपने ही हाथों से कुर्बान करना था। लेकिन दूसरी तरफ आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और आप अलैहिस्सलाम को बहैसियत नबी खुदा अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल था, इसलिए अल्लाह पाक का हुक्म ना मानने का सवाल ही नहीं था। लिहाजा हुक्म रब्बानी की तकमील के लिए आप काफी अरसा सफर करने के बाद मक्का पहुंचे। वहां पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने अरब कौम को ऊंट और बकरियां चराते हुए देखा, जबकि वहां लोगों की अच्छी खासी रेल पेल भी थी। लोग इधर उधर जा रहे थे, मगर उनमें से किसी ने भी आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। जब हजरत बीबी हाजरा ने आप अलैहिस्सलाम को दूर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी और उन्हें इंतहाई इज्जत व एहतराम से अपने मकान पर लाई। फिर बेटे को बुलवाया और कहा, देखो बेटा, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम आए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम को देखकर खुशी से आगे बढ़े और उनके सीने से लग गए। अब जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भरपूर जवान थे और समझदार भी थे, लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक वीराने की तरफ चल दिए। रास्ते में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से सवाल किया, बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने नेक वालिद के बहादुर और पाकबाज फर्जंद थे। उन्होंने ऐसे में अपने वालिद को वो जवाब दिया जो एक मर्द मोमिन ही दे सकता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिद से कहा, वालिद मोहतरम, ये तो मेरे लिए बड़ी शहादत की बात है कि मैं परवरदिगारे आलम पर अपनी जान कुर्बान करूं। आप अलैहिस्सलाम वैसा ही करें जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। मैं इस कुर्बानी के लिए बाखुशी तैयार हूं और इस काम में आप मुझे इंशाअल्लाह साबित कदम और साबिर पाएंगे। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने जमीन पर लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इन दोनों के इस अमल के दौरान वहां शैतान भी मौजूद था और उनके दिलों में वसवसा डाल रहा था, जिसके नतीजे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 बार शैतान को पत्थर मारे और उससे कहा, तुम हमें बहका नहीं सकते। उसी की याद ताज़ा करते हुए हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी ताकि जो कुछ वो करने लगे थे वो देख ना सके, क्योंकि ये एक दिल हिला देने वाला अमल था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और उसको बेटे के गले पर रख दिया। यही वो लम्हा था जब जमीन के साथ अर्श भी हिल गया। अपने रब के इश्क की इंतहा थी। जमीन सख्त हो चुकी थी, छुरी चलने ही वाली थी कि खामोशी का सीना चीरती हुई गूंजदार आवाज सुनाई दी, ए इब्राहिम, बेशक हम नेकी करने वालों को अच्छा बदला देते हैं,
یہ تمہارا امتحان تھا جس میں تم دونوں کامیاب ہوئے، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کیا۔ اللہ پاک کے دونوں برگزیدہ بندے اس عظیم قربانی کے عمل سے سرخرو ہوئے، اور اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کی قربانی قبول فرمائی، یعنی وہاں اللہ پاک کی طرف سے ایک دمبا آ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حاجی اس عظیم واقعے کو یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ ایک نیک اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے تنہا صرف اللہ پاک کے سہارے اپنی زندگی گزاری اور مشکلات میں بھی صابر رہی اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی اعلیٰ تربیت کی اور سرخرو دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ بنو جرہم کے باہمی رضامندی سے آپ علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں دفن کیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت اداس اور رنجیدہ نظر آنے لگے۔ ہر وقت آپ علیہ السلام کو اپنی والدہ کی یاد ستاتی رہی۔ بنو جرہم کے سردار نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی شادی کر دی جائے اور ایک نیک خاتون کو ان کے نکاح کے لیے دیا جائے۔ اس خاتون کا تعلق بنو امالک قبیلے سے تھا اور اس کا نام امارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالکی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم کی خواہش کا احترام کیا اور یوں قبیلہ امالک کی ایک لڑکی سے نکاح کر لیا۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حسب معمول جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو وہ گھر پر نہیں تھے۔ ان کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی ساس یعنی حضرت بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے انتقال کا سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دکھی ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو ان کی بہو نے بتایا کہ وہ ذریعہ معاش کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئے ہیں اور شام تک واپس آئیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی سارہ سے یہ وعدہ کر کر آئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو مل کر فوراً واپس آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے بیٹے کے انتظار میں وہاں رات رہنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی بہو کے اصرار کے باوجود واپس لوٹ جانے کا ارادہ کیا۔ جاتے ہوئے انہوں نے بہو سے پوچھا کہ ان کے شوہر کی گزر بسر کس طرح ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ گھر کے معاشی حالات بہت خراب ہیں، بڑی تنگدستی اور مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے، یہ چوکھٹ ان کے قابل نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لائے تو ان کی زوجہ نے انہیں ایک بزرگ کی آمد کا حوالہ سنایا اور یہ بھی پوچھا کہ انہوں نے چوکھٹ چھوڑنے کا جو مشورہ دیا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا، وہ بزرگ جو یہاں تشریف لائے تھے دراصل میرے والد تھے اور چوکھٹ چھوڑنے کا ارادہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو چھوڑ دوں، کیونکہ تم نے ان کے سامنے تنگدستی کا گلہ کیا تھا۔ بس اسی لیے میں تمہیں آج ہی تمہارے والد کے گھر رخصت کرتا ہوں اور اب مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں۔ اپنی زوجہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بار پھر تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قبیلہ جرہم نے آپ علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دیکھتے ہوئے ایک دوسری نیک لڑکی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ ان کا نام سیدہ بن مزاس بن عمرو جرہمی تھا جو قبیلہ جرہم سے تھی۔ حسن اتفاق سے اس مرتبہ بھی
जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के यहाँ तशरीफ लाए तो वो घर पर ना थे। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उनकी बहू दरवाजे पर आई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ए बुजुर्गवार, अंदर तशरीफ ले आए। आप ऊंट से उतरकर अंदर तशरीफ ले गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जोजा बीबी सैयदा ने आपके हाथ धुलवाए और इंतहाई अकीदत व एहतराम से चटाई पर बिठा दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हालात के बारे में दरियाफ्त किया तो इंतहाई शुक्रगुजारी से कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम जंगल से शिकार को गोश्त लाते हैं और उसको आबे ज़मज़म से पाक करके हम लोग खुशी से खाते हैं। हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल और तसल्ली बख्श है। अल्लाह पाक ने हमें जिस हाल में रखा हुआ है उस पर हम दोनों मियाँ बीवी उसके शुक्रगुजार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की आमद से पहले ही वहां से रुखसत हो गए। अलबत्ता चलते चलते उन्होंने अपनी बहू से कहा, इस्माइल से कहना इस दरवाजे की दहलीज निहायत अच्छी है, इसलिए इसको एहतियात लाजिम है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस घर तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने शौहर को घर में कुछ देर ठहरने वाले बुजुर्ग मेहमान के बारे में सब कुछ बता दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा से कहा, वो बुजुर्गवार मेरे वालिद मोहतरम थे। तुमने उनके साथ जो अच्छा सलूक किया है, इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि घर की दहलीज अच्छी है। बहरहाल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा में भी अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भरपूर हाथ बटाया। तामीर काबा का आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि एक रोज हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने आपको एक ऐसा मकान बनाने का हुक्म फरमाया है जो तमाम दुनिया के लिए तवाफ गाह हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरिया फरमाया, ये तवाफ गाह कहां पर तामीर की जाए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार होकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हो लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद आसमान पर अबर का टुकड़ा नमोदार हुआ जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ साथ आसमान पर तैरने लगा। उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जहां अबर का ये टुकड़ा ठहर जाए उसी के साए तले खुदा के घर को तामीर कीजिए। चुनाचा जब बादल का वो टुकड़ा जमीन मक्का मौजमा पर एक ऐसे मकाम पर जाकर रुक गया जहां एक रेतीले ठीले के सिवा कुछ ना था, उस जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक खत खींच दिया। इसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से हवा चलाई गई जिसने खाना काबा की वसत के मुताबिक जगह झाड़ दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी जगह ठेले काटने शुरू कर दिए और यहीं पर खाने काबा की बुनियाद रखी। अल्लाह पाक के इस घर की तामीर के लिए फरिश्ते कोह लिबनान, तोरे जमनिया, तोरे सीना जूदी और चुरा से पत्थर लाया करते थे। फरिश्ते जिनमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते शामिल थे पत्थर लाते थे, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और वालिद मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ काबा की तामीर करते रहे। जब काबा की दीवारें कद आवर हो गईं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि कोई बड़ा पत्थर तलाश करके लाओ जिस पर मैं खड़ा होकर दीवारें बुलंद कर सकूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कोहे अबू कुबैस पर पत्थर लेने के लिए तशरीफ ले गए। वहीं पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात की गर्ज से तशरीफ लाए और फरमाया, ए इस्माइल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दहशत से 2 पत्थर जमीन पर भेजे गए थे। उनको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बखौफे तूफान नूह इसी पहाड़ में मदफून किया है। उनमें से एक पत्थर आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने के लिए ले जाएं और दूसरे को खाना काबा के दरवाजे के सीधी जानिब एक गोशा में नस्ब करने के लिए ले जाएं।
ताकि जो कोई तवाफ़ काबा के लिए दाखिल हो पहले इस पत्थर को बोसा दे ले। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक एक करके ये दोनों पत्थर उठा लाए। जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर दीवारें बनाते थे उनमें अजीब व गरीब किस्म की खासियत थी। जिस कदर दीवार बुलंद होती थी वो भी बुलंद होता जाता। ये पत्थर इस कदर नरम था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उंगलियों के निशान इसमें बन गए थे। संगे अस्वद में इस कदर रोशनी होती थी कि काबा में चारों तरफ दूर दूर तक इसकी रोशनी फैल जाती थी। काबा के बिल्कुल सामने एक जगह मकाम इब्राहिम के नाम से जानी जाती है। यहाँ शीशे के बॉक्स में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान बने हुए हैं। ये पत्थर कदीम जमाने से महफूज हालत में आज भी मौजूद है। यहाँ मुसलमान खुसूसी नमाज नफल पढ़ते हैं और अल्लाह पाक के इस बरगज़ीदा नबी अलैहिस्सलाम से अकीदत का इजहार करते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। यही महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में अल्लाह पाक का आखिरी पैगाम लाए और उन पर आकर नबुवत खत्म हुई। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 133 बरस की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम को मक्का मोज़मा में आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी हाजरा के पास दफन किया गया। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।